Hello everyone, welcome back to another session of Ankita's tutorial, and today I will discuss about VLSI, operating system and embedded system 50 MCQs. Okay, but before starting this video, let me wish you all a very happy, healthy and prosperous new year. Stay blessed all of you, and wishing you all a great year ahead. I hope you all are doing well and good. So okay, this is all about my new year wish. And before starting my video, it's my very sincere request to all those who are watching my video or following my channel, please do subscribe my channel. And though if you are really liking my videos, then press the thumbs up button and forward my video, or you can share my video as much as possible, so that I can cover maximum students. Okay, and these MCQs are according to SSC syllabus. For any other exams, if you have computer awareness paper, then let me know in the comment section. I will upload the video according to that. Okay, so now let's get started. As I have already told you, today is about VLSI, that is very large scale integration, embedded system, and this is my operating system. So let me do it in the presentation mode. Sorry. Here is my first question. As you can see here, embedded system, very large scale integration and operating system. So first question, dash is first microprocessor, that is Intel 4004 is the first microprocessor. Now what is the microprocessor? Microprocessor means it is a computer processor where the data processing unit, logic and control is included on a single integrated circuit or small number of integrated circuit. You can say in a single integrated circuit or small number of integrated circuits. Okay, and also it contains arithmetic logic unit, control circuitry required to perform the functions of a computer CPU. एक कंप्यूटर CPU के ऑपरेशन के दौरान जो चाहिए होता है, ये जो रिक्वायरमेंट होता है, ये सभी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर है और वो इसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन प्रोसेस डैश इज यूज टू क्रिएट ए मोर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट वी वांट. सिस्टम इंटीग्रेशन, आर्किटेक्चर, स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट्स. तो करेक्ट आंसर इज स्पेसिफिकेशन. एम्बेडेड, अब ये एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन प्रोसेस क्या है, मैंने इसके रिगार्डिंग MCQ बनाई हूँ. आगे चल के वो सब हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, अभी ये स्पेसिफिकेशन ही एक रिक्वायरमेंट होता है जो कि मोर डिटेल में आपको वो डिस्क्राइब करता है कि हम लोग को क्या चाहिए होता है एग्जैक्टली एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन प्रोसेस में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash is used to fetch instruction from memory. Control unit, execution unit, memory unit, ALU. तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें? कंट्रोल यूनिट जो है वो एक्चुअली इंस्ट्रक्शन फेच करता है फ्रॉम मेमोरी में. अभी मेमोरी में हमारा 3 काम होता है, फेच होता है, डिकोड होता है, एग्जीक्यूट होता है. तो फर्स्ट स्टेप होता है फेच, उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोड होता है, उसके बाद फाइनली वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है. जो फेच होता है जो इंस्ट्रक्शन, वो कौन से यूज़ होता है जो फेच करने के लिए? कंट्रोल यूनिट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर CISC stands for what? That is a CISC, you can say. CISC, that is complex instruction set computer. इसका फुल फॉर्म ये है CISC का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A computer that uses the same memory space for both data and program instruction is classified as dash. कंप्यूटर जो यूज़ करता है सेम मेमोरी स्पेस को डेटा के लिए भी और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के लिए भी, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर. ये जो आर्किटेक्चर होता है ये कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल शेयर मेमोरी है फॉर बोथ प्रोग्राम एंड डेटा, जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा गया है. एंड अ सिंगल बस फॉर मेमोरी एक्सेस एंड अरिथमेटिक यूनिट एंड अ प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट. इतना होता है. ठीक है ना, एक सिंगल बस होता है, अरिथमेटिक यूनिट होता है एंड ऑल्सो ए कंट्रोल यूनिट इन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर. Moving to the next question. Intel family in 1960 microcontrollers are also used as dash. Embedded processors, microprocessors, processor handbook, none of the above. So the correct answer is embedded processor.
इंटेल फैमिली के जो 1960 माइक्रो कंट्रोलर्स है उसको क्या हम लोग बोलते हैं उसको, इट ऑल्सो नोन एज एम्बेडेड प्रोसेसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डैश प्रोवाइड्स फास्ट discrete time signal processing instruction. Four options are given: DPS, DSP, ASSP, GPP. So correct answer is DSP. DSP stands for digital signal processing. See, it is a vast chapter. While I was in my MTech, this was a chapter for me and it was very difficult. Let me tell you, DSP is the digital signal processing. So if it cannot be defined in a single sentence, still if I will focus on a single line, then ये क्या होगा, DSP डिजाइन फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल फंक्शंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वेरी क्विकली. ओके, यही होता है DSP में. अब जो और क्या है, ये इट टेक्स सम रियल वर्ल्ड सिग्नल्स लाइक वॉइस, ऑडियो, वीडियो, टेम्परेचर, प्रेशर दैट हैव बीन डिजिटलाइज्ड एंड देन मैथमेटिकली मैनिपुलेट देम. ओके, यही होता है DSP. अभी मैंने तो इतना बस आपको एक डेफिनेशन बनाया है, पर ये अपने आप में एक बहुत सारा ये इसमें है. जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा. ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये जानिए, DSP स्टैंड्स फॉर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग. ये रियल वर्ल्ड से सिग्नल लेता है एंड वॉइस, ऑडियो, वीडियो, टेम्परेचर, प्रेशर दैट हैव बीन डिजिटलाइज्ड, ये डिजिटलाइज करता है एंड देन मैथमेटिकली इसको मैनिपुलेट करता है. ओके, नेक्स्ट, a dash takes the inputs from the various channels and transfer the inputs from a selected channel to the system. Demultiplexer, multiplexer, message queue, none of the above. So the correct answer is demultiplexer जो है ये input लेता है various channel से and transfer करता है वही inputs को in a selected single channel में. ओके, ये इसी को demultiplexer बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल चिप माइक्रो कंट्रोलर डेवलप्ड बाय इंटेल इन डैश ईयर. 1980 में इंटेल के द्वारा एक सिंगल चिप माइक्रो कंट्रोलर डेवलप किया गया था. ओके, इन द ईयर 1980. नेक्स्ट क्वेश्चन, द 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज अ डैश बीट मशीन. तो 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर है वो 8 बीट मशीन है. जस्ट कीप इट इन योर माइंड, 8 बीट. सी, अभी माइक्रो कंट्रोलर क्या है? Microcontroller means it is a compact integrated circuit, you can say, designed to govern a specific operation in a embedded system. ये integrated circuit में वो एक compact integrated circuit है जो एक specific operation perform करता है in embedded system. Okay, and a microcontroller includes a processor, memory, input, output, peripherals in a single chip. ये सारे होते हैं माइक्रोकंट्रोलर में, एक सिंगल चिप में ये सब इंक्लूड होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बेडेड कंप्यूटिंग सिस्टम, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे. एम्बेडेड सिस्टम में क्या है? एम्बेडेड कंप्यूटिंग सिस्टम यूजुअली डू नॉट कम विथ डैश एंड डैश, मोबाइल एंड माइक्रो ओवन्स, वॉशिंग मशीन एंड माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल कैमरा एंड फोटोज, कीबोर्ड एंड स्क्रीन. सॉरी, ये कीबोर्ड एंड स्क्रीन do not come with keyboard and screen because embedded system जो computing system है ये made up of both hardware and software. Okay, and it has designed to perform some specific task. कुछ task बस specific perform करने के लिए इसको design किया गया होता है. Particularly traffic signals, digital watches, these are the best examples of, you can say, embedded computing system. Okay. Next question, a microcontroller peripheral which is used to convert digital data values into analog signal is called what? DAC, ADC, I2C और I2C. C और D का मैंने सेम डाल दिया है. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज DAC, डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर. DAC स्टैंड्स फॉर. ओके, और ये जो ADC है क्या ऑपोजिट है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. अब ये I2C की है, क्या है ये? IC मतलब तो एज यू नो दैट इज द इंटीग्रेटेड सर्किट and I2C means क्या? I2C protocol used to establishes communication between two or more ICs. दो और मोर इंटीग्रेटेड सर्किट के बीच में ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए होता है, इसलिए इसको I2C बोला जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? क्या हो गया आपका? DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बेडेड सिस्टम इज डैश. जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन, अगर आपको चाहते हो डेफिनेशन, तो ये है आपका microcontroller. It is a microcontroller based, software driven and control based and real time control system है. embedded system जो है, ये सारे आते हैं embedded system में. आप इसको अगर डिफाइन करना चाहोगे तो
ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एम्बेडेड सिस्टम हैज हाउ मेनी कंपोनेंट्स? So the correct answer is it has 3 components. The first one is your hardware, second one is your application software, and third one is your RTOS, that is a real time operating system. Okay, next question, the design which is used to reduce the energy consumption of the embedded system dash simulator, compiler, emulator, debugger. So the correct answer is compiler. ये रिड्यूस करता है एनर्जी कंजप्शन ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एसेंशियल टाइट कंस्ट्रेंट्स एसोसिएटेड विद द डिज़ाइन मैट्रिक्स ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम? क्या क्या कंस्ट्रेंट्स होता है जो कि डिज़ाइन टाइम में, एम्बेडेड सिस्टम के डिज़ाइन टाइम में और ड्यूरिंग द डिज़ाइनिंग ऑफ एम्बेडेड सिस्टम यूज़ किया जाता है? क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं? एबिलिटी टू फिट ऑन अ सिंगल चिप, लो पावर कंजप्शन, faster data processing for RTO, that is the real time operation, all of the above. So the correct answer is all of the above, because ability to fit on a single chip, yes, embedded system में है ये ability. low power consumption है, yes, ये low power consume करता है. and faster, ये जो data processing real time operation के लिए जो data processing होता है, इसका processing भी ये बहुत fast करता है. so ये सारे constants बहुत मायने रखते हैं जब embedded system डिज़ाइन किया जाता है. okay, which of the following offers external chips for memory and peripheral interface circuits? Microcontroller, microprocessor, embedded system, peripheral system. So correct answer इसमें क्या है? Microprocessor जो है वो ऑफर करता है external chip for memory and peripheral interface circuits. See, microcontrollers are CPU which have integrated memory, okay, and peripherals, whereas microprocessor offers external chip for memory. Okay, just keep it in your mind. Microcontrollers are CPU which have integrated memory and peripherals. Okay, whereas microprocessor offers external chip for memory. Next question. Give names of the buses present in a controller for transferring data from one place to another place. So the correct answer यहाँ पे क्या क्या है? डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस. ये तीनों बस यूज होते हैं हमारे डेटा ट्रांसफर के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए माइक्रो कंट्रोलर एटलीस्ट शुड कंसिस्ट ऑफ डैश रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एंड टाइमर्स. तो फर्स्ट वन इज योर करेक्ट. ये सारा माइक्रो कंट्रोलर में होना चाहिए. रैम होना चाहिए, दैट इज योर रैंडम एक्सेस मेमोरी. रोम होना चाहिए, रीड ओनली मेमोरी. आईओ पोर्ट्स, दैट इज द इनपुट आउटपुट पोर्ट होना चाहिए. एंड टाइमर्स होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, system built on microcontroller are termed as dash embedded system, telecommunication system, FPGA, CPLD. No doubt the answer should be embedded system, isn't it? Next question, what is an example of embedded memory microcontroller? Intel 8051 microcontroller जो है वो you can say it is an example of embedded microcontroller, because ये जो है ना 8051 microcontroller has all the programs and data, memory, counters, timers, interrupts, input output ports are embedded on in the single chip. Okay, so ये एक एग्जाम्पल हो सकता है आपके एम्बेडेड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर का. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ख़त्म हो गया अब हमारा 1 to 20 क्वेश्चन फ्रॉम एम्बेडेड सिस्टम. नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम VLSI, that is the very large scale integration technology. Okay, next question, VLSI technology uses dash to form integrated circuit, transistors, switches, diodes, buffers. the correct answer है transistor, because VLSI में मतलब क्या, ये जो very large scale integration होता है ना, this is the process of creating an integrated circuit by combining thousands of transistors into a single chip. यही है VLSI का मोटो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, dash architecture is used to design VLSI, single open circuit, system on a chip, system on a device, system on a circuit. So the correct answer is system on a chip, that is known as SoC. It is also known as SoC, and it is used to design very high level integrated circuit. Let me tell you, SoC जो होता है very high level integrated circuit डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, dash is used in logic design of VLSI, LIFO, FIFO, FILO and LILO. That is the correct answer is FIFO, that is the first in first out. And another term I want to add here,
फाइनाइट स्टेट मशीन टेक्निक इज ऑल्सो यूज इन लॉजिक डिजाइन ऑफ VLSI डिजाइन सर्किट। अगर फीफो नहीं दिया गया हो ऑप्शन में, अगर फाइनाइट स्टेट मशीन होना, तो ये एक आपका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ये दो टेक्निक ही यूज किए जाते हैं ड्यूरिंग द लॉजिकल डिजाइन ऑफ VLSI। ओके, लॉजिक डिजाइन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ VLSI डिजाइन? problem statement, logic design, HDL program, functional design. So correct answer is problem statement, because ये जो problem statement है ये performance, functionality, physical dimensions are considered in the problem statement. ये सब problem statement के अंदर ही आता है. Okay, which provides higher integration density? Transistor logic, as you can see here, this is the correct option. Transistor logic is because became the first integrated circuit revolution. ये जो ट्रांजिस्टर लॉजिक है ये फर्स्ट IC है. ओके, फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट रिवोल्यूशन है ये. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द VLSI डिजाइन फ्लो स्टार्ट्स विद डैश. RTL सिंथेसिस, लाइब्रेरी मैपिंग, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, ऑन ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर इज प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन. पहले VLSI आप जब डिज़ाइन करते हैं तो उस प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में उसका फ्लो पहले ये स्टार्ट होता है. पहले रिक्वायरमेंट ये होता है कि क्या प्रोडक्ट है वो पहले स्पेसिफाई होगा. ओके, गेट मिनिमाइजेशन टेक्निक इज़ यूज टू सिंप्लीफाई द लॉजिक. ट्रू या फॉल्स? ऑब्वियसली ट्रू, क्योंकि जो हमारा गेट्स है, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सब गेट सब आते हैं, ये सब गेट तो ऑब्वियसली सिंप्लीफाई, क्योंकि हमेशा हम ट्रूथ टेबल रेफर करते हैं तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, पर जब गेट क्रिएट हो जाता है तो ये इजी हो जाता है हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में. मीडियम स्केल इंटीग्रेशन हैज डैश 10 लॉजिक गेट्स, 50 लॉजिक गेट्स, 100 लॉजिक गेट्स, 1000 लॉजिक गेट्स. सो करेक्ट आंसर इज 100 लॉजिक गेट्स. ओके, जस्ट कीप इट इन योर माइंड. लार्ज स्केल जो इंटीग्रेशन है उसमें 1000 एंड 1000 लॉजिक गेट्स होता है लार्ज स्केल में. स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन जो होता है उसमें 1 और मोर लॉजिक गेट्स है, एंड इन योर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन देयर इज 100 लॉजिक गेट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिजाइन फ्लो ऑफ VLSI सिस्टम? क्या क्या है यहाँ पे? आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, मार्केट रिक्वायरमेंट, लॉजिक डिज़ाइन, HDL कोडिंग. और इसको हम लोग, इसका कौन सा फ्लो इसमें से सही है? तो पहला आएगा नंबर 2, मार्केट रिक्वायरमेंट पहले. ओके, सेकेंड क्या है उसका? आर्किटेक्चरल डिज़ाइन. थर्ड क्या है इसका? लॉजिक डिज़ाइन. फोर्थ क्या है इसका? HDL कोडिंग. ये इसका फ्लो है. ओके, which among the following is a process of transforming design entry information of the circuit into a set of logic equation? क्या है क्वेश्चन? थोड़ा लेंदी है. which among the following is the process of transforming design entry information of the circuit into a set of logic evaluation? So the process जो ट्रांसफ़र किया जाता है जो डिज़ाइन इंफॉर्मेशन ऑफ द सर्किट को इनटू ए लॉजिक इक्वेशन में, उसको क्या बोलते हैं? लॉजिकल इक्वेशन में अगर ट्रांसफ़र किया जाता है उसको सिंथेसिस बोलते हैं. ठीक है. इन VLSI डिज़ाइन विच प्रोसेस डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ इंटरकनेक्शन? फ्लोर प्लानिंग, एक्सट्रैक्शन, टेस्टिंग, प्लेसमेंट एंड रूटिंग. तो करेक्ट आंसर है इसमें क्या है आपका? एक्सट्रैक्शन. एक्सट्रैक्शन VLSI डिज़ाइन का एक प्रोसेस है जो डील करता है इस रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने में एंड इंटरकनेक्शन का कैपेसिटी डिटरमाइन करने में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, उतना तक था हमारा VLSI का क्वेश्चन. नेक्स्ट ये मैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की क्वेश्चन की MCQ बनाई हूँ. ओके, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ फाइल नेम इन DOS? DOS स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. DOS में क्या है इसका फाइल मैक्सिमम लेंथ कितना है? 8. ओके, नेक्स्ट, मतलब मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फाइल नेम 8 है, एंड पर इट इज़ कॉमनली नोन एज 8.3 फाइल नेम. ओके, नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम when was the first operating system developed? In the year 1950 the first operating system developed, and it was also called as a single stream batch processing system because it presented data in a groups. इसलिए इसको सिंगल स्ट्रीम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है. ओके, व्हाट एल्स इज अ कमांड इंटरप्रेटर कॉल्ड? प्रॉम्प्ट,
prompt, kernel, shell, command. Correct answer shell. Command interpreter also known as your shell. Okay. When does page fault occur? पेज फॉल्ट कब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में? पेज फॉल्ट कब होता है? द पेज डजंट प्रेजेंट इन मेमोरी. जब पेज हमें रिक्वायरमेंट होता है जब मेमोरी में नहीं होता है. मीन्स a process tries to access a block or page of the memory and that page is not stored in the RAM or memory, you can say. जब भी कोई प्रोसेस ट्राई करता है एक्सेस करने के लिए कोई भी एक ब्लॉक ऑफ पेजेस को मेमोरी से, एंड दैट पर्टिकुलर पेज अगर प्रेजेंट नहीं होता है तुम्हारे मेमोरी में और रैम में, तो वहाँ पे पेज फॉल्ट अकर होता है. Next question, Banker's algorithm is used for what? To prevent deadlock, to deadlock recovery, to solve the deadlock, none of the above. Correct answer is to prevent deadlock. और इसका नाम Bankers क्यों है? Because it is and yes, just keep it in your mind. It is also called as detection algorithm. Banker's algorithm is also known as detection algorithm. Okay. And इसका नाम बैंकर क्यों है? बिकॉज इट इज़ यूज टू डिटरमाइन वेदर ए लोन कैन बी ग्रांटेड इन द बैंकिंग सिस्टम और नॉट. इसलिए इसका नाम बैंकर्स रखा गया है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? प्राइवेट, विंडोज, ओपन सोर्स, नॉन ऑफ द अबव. सो जस्ट कीप इट इन योर माइंड. लिनक्स इज द ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके. बिकॉज लिनक्स मेड अप ऑफ अ कर्नल, इट इज़ अ वेरी सेफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ये कर्नल में मेड हुआ है और ये बहुत ही सेफ ऑपरेटिंग सिस्टम है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? MS DOS, मैक, विंडोज, नॉन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर है MS DOS. DOS जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है एंड ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है इन विच ओनली वन यूजर कैन एक्सेस द कंप्यूटर सिस्टम एट अ टाइम. दिस इज द रीजन it is called as single user operating system. Okay. Moving to the next question, the size of the virtual memory is based on which of the following? CPU, RAM, data bus, address bus. So correct answer क्या है? Address bus के size of the virtual memory जो है, the size of the virtual memory is based on address bus. Okay. Next question, which of the following support Windows 64-bit? सो करेक्ट आंसर इज विंडो XP जो है वो 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन दैट कॉजेज डेडलॉक? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट, नो प्रीएम्पशन. ये सारे डेडलॉक के अंडर आता है आपका. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू यू यूज फॉर अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क? विंडो, लाइनक्स, विंडोज 2000, विंडोज XP. तो इसमें से करेक्ट आंसर आपका क्या है? विंडोज 2000 जो है वो एक क्लाइंट सर्वर नेटवर्क यूज़ करता है एंड इट ऑल्सो इंक्लूड सम फीचर्स फ्रॉम विंडोज XP ऑल्सो. ये कुछ फीचर्स विंडोज XP से भी हायर करता है. ओके. विच विंडोज वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू माई कंप्यूटर? सो आंसर इज विंडोज 95. ओके. दैट विंडो वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड टू माई कंप्यूटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the number of character contained in the primary name of the file of MS DOS? मैंने जब शुरू किया था ऑपरेटिंग सिस्टम का MCQs देना, ये जहाँ पर जो क्वेश्चन था मैक्सिमम 8, ये वही क्वेश्चन है. अप टू 8 कैरेक्टर्स मीन्स 8.3. MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस द फाइल सिस्टम दैट सपोर्ट्स 8.3 कैरेक्टर. अभी 8 क्या है? फाइल नेम है, 3 आपका एक्सटेंशन है. ओके. विच प्रोग्राम रन्स फर्स्ट आफ्टर booting the computer and loading the GUI? GUI stands for graphical user interface. So इसका करेक्ट आंसर है ऑथेंटिकेशन. मीन्स ऑथेंटिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द पर्सन और डिवाइस. मतलब देखिए, आप जब भी आप फेसबुक ओपन करते हो, आप जब लॉग इन करते हो फेसबुक में, तो आप क्या देते हो उसमें? आपका यूज़र नेम और पासवर्ड देता हो. तो फिर क्या, ये एक ऑथेंटिकेट यूज़र नेम, एक पासवर्ड देते हो आप. तो वही है ऑथेंटिकेशन. मतलब क्या, ये ओके प्रोसेस है वेरीफाई करने के लिए, एक पर्सन को वेरीफाई करने के लिए, और यू कैन से डिवाइस को वेरीफाई करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग इज द राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग? लीनियर डेटा शेड्यूलिंग, नॉन लीनियर डेटा शेड्यूलिंग, प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव. सो करेक्ट आंसर इज प्रीएम्प्टिव. राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो है वो प्रीएम्प्टिव है बिकॉज स्पेसिफिक टाइम इज प्रोवाइडेड टू एग्जीक्यूशन ईच प्रोसेस. राउंड रॉबिन में क्या होता है? एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेस को, एंड दिस स्पेसिफिक जो टाइम दिया जाता है उसको टाइम स्लाइस कहा जाता है राउंड रॉबिन में. ओके. व्हाट इज द पेजिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम? मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम, नेटवर्क मैनेजमेंट स्कीम, इंटरनेट मैनेजमेंट स्कीम, नॉन ऑफ दिस. करेक्ट आंसर इज मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम.
पेजिंग क्या होता है, एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में. व्हाट इज बफर? परमानेंट एरिया, टेम्पररी एरिया, लार्ज एरिया, स्मॉल एरिया. सो करेक्ट आंसर इज टेम्पररी एरिया. मीन्स where data is stored for some time before being transferred to the main memory. ओके, मेन मेमोरी को ट्रांसफ़र होने से पहले डेटा को कहीं पे एक टेम्पररी बेसिस में स्टोर किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, बफर. उसके बाद उसको मेन मेमोरी को शिफ्ट किया जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी फॉर्मेट सपोर्ट लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? ELF बाइनरी फॉर्मेट. ओके, इसको याद रखिएगा. ELF स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूटेबल and linkable format. That what ELF means. Okay, the ELF format is used for libraries and executable file in Linux operating system. Linux operating system में ये ELF होता है एक. ठीक है. Next question. Which of the following window do not have start button? You know that Windows 8 do not have its start button. Which one is not a system tool? Backup, defragment, virus scanning, all of the above. So correct answer is virus scanning एक system tool नहीं है. बाकी आपका बैकअप, डिसफ्रैगमेंट, ये दोनों है आपका systems tool. Okay. So here I am done with the 50 MCQs. I hope you all are liking my video. Then please do subscribe my channel and do follow my video and please share my video. Okay. Thank you.